Okay, yesterday we discussed about binomial nomenclature given by Carlos Linnaeus. Binomial nomenclature refers to the scientific naming of the organisms, which includes two parts. One is genus name and the another one is species name. Now one question must be rising in your mind that these scientific names are so hard to learn, right? These are very difficult. So why we are using these scientific names? Why we don't use common names which are very easy to remember? Like we can simply use local regional names, right? The problem with these local names is that they are not same throughout the world. But scientific names are in Latin language. Latin language is dead language. It is not subjected to any modification or changes. So it will remain same throughout the world, right? Like you can read this part. Using these two-part scientific names allows scientists from all around the world to be sure they are talking about the same species when they are communicating, regardless of whether they speak English, Spanish और Chinese. ठीक है, तो अगर एक जगह पे मान लो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कोई रशिया से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई चाइना से है, कोई स्पेन से है, तो उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होगी, राइट? वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में एनिमल्स को कुछ बोलते होंगे। तो मान लो स्पेनिश कुछ और बोलता है, ठीक है, चाइनीज़ जो है वो कुछ और बोलता है, तो ऐसे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट कन्फ्यूजन व्हाट दे डिड, they chose Latin language so that the names can be same throughout the world, so it will avoid any kind of confusion. Common names of organisms can vary from language to language and even from region to region in a country. Example is given: robin in England is entirely different bird from a robin in Canada. ठीक है, तो जो कनाडा का रॉबिन है वो डिफरेंट है और जो आपका इंग्लैंड का रॉबिन है वो डिफरेंट है। सो इसीलिए हमने साइंटिफिक नेम रख दिए कि जब भी साइंटिस्ट जो हैं उनको कम्युनिकेट करना हो तो वो जो साइंटिफिक नेम यूज़ करें वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहे, ठीक है, वो उसी के बारे में बात कर रहे हो तो कोई कंफ्यूजन ना हो तब। अनदर एग्जाम्पल इज इन नॉर्थ अमेरिका the name quagga, panther, puma, and mountain lion are all used for the same species of animal, Puma concolor. So the use of common names is quite confusing, okay, and scientific names will avoid this confusion and they are universal. They will not vary from region to region. So that's why we are using scientific names. Now I'll tell you some scientific names, okay, commonly used scientific names. Just wait for a while. Okay, so we will discuss the scientific names of some common organisms. We have already discussed the scientific name of tiger, lion, and humans, dog, and cat as well, right? For lion, it is Panthera leo, and for tiger, this is Panthera tigris, then human Homo sapiens, right? Now we will discuss some more scientific names like of apple. The scientific name of apple is Pyrus malus. Then scientific name of pomegranate is Punica granatum. Punica
granatum. After that, we have scientific name of mango. The scientific name of mango is Mangifera indica. Mangifera indica. Now, as I am writing these names, the names must be underlined. Yesterday, we discussed about the rules that whenever you are writing the scientific names, genus name and species name should be underlined separately, and first letter of the genus name should be capitalized. So, I will underline the punica as well as granatum, then mangifera and indica separately. Okay. हेयर आई डोंट हैव स्पेस, तो यहाँ पे मुझे मैंगी और फेरा को अलग अलग से अंडरलाइन करना पड़ा. ओके, अदरवाइज यू विल अंडरलाइन, पुट वन अंडरलाइन अंडर द मैंगी फेरा and the another line below the indica. So this is how you write the scientific names. Then we have the scientific name of pea plant. The scientific name of pea plant is Pisum sativum. Okay, it's Pisum. So you can see P is capital, first letter of the genus is capital, Pisum, underline Pisum. Then we have Sativum. So these are some common, some scientific names of the common organisms. So yes, nomenclature is complete now. Obviously there are n number of organisms, right? But you can't learn all the names, but you have to learn some basic names, okay, like cat, dog, humans, then some plants, okay, lion, tiger, elephant as well. Now we will proceed our discussion to the classification system. So here is one question: why do scientists used an agreed upon system of binomial nomenclature for naming organisms rather than common names? So I already told you कि जो common names हैं they will create a lot of confusion, while जो आपके scientific names हैं they are universal throughout the world. Okay, whether they speak Chinese, Spanish or English, the meaning or the scientific name will remain same. Now we will be moving towards classification systems. Okay, classification of the organisms. So what is classification? That is grouping of organisms into different groups, right, on the basis of similarities and dissimilarities. We will discuss early classification systems, then we will be discussing about the different groups of the organisms. Okay, now the first classification system was given by Aristotle. What Aristotle did, he classified the organisms into two groups, plants and animals, and later on these were called as animal kingdom and plant kingdom. Okay, तो उसने क्या किया, जितने भी organisms थे इस अर्थ पे उसको दो ग्रुप्स में रख दिया, प्लांट और एनिमल्स में. Then he divided plants into three groups on the basis of the structure of stem, and he divided the plants into herbs, shrubs and trees. ठीक है, अगर आप देखो तो herbs में क्या होगा, उनकी stem जो है वो काफ़ी छोटी होती है. श्रब्स की स्टेम जो है वो उससे थोड़ी सी थिक होगी, स्टेम बड़ी होगी. हर्ब्स की स्टेम जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत थिन होती है.
Then if we talk about trees, so then their stem is woody and very strong and very large, right? So in this way, Aristotle divided the plants into three groups: herbs, shrubs, and trees. And he divided the animals on the basis of their habitat, that where they are found, whether they are found in land, okay, in water, on land, or they are living in air. But one of the major disadvantage of Aristotle's classification system was it was just based on morphological features. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स. अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे? दे विल हैव सम स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, ठीक है, उनके फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी रूट कैसी नज़र आती है देखने में. तो जब भी हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. तो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो मेजर ड्रॉबैक था दैट वाज कि इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल फीचर्स एंड हैबिटेट. अब हम हैबिटेट के बेसिस पे तो क्लासीफाई नहीं कर सकते एनिमल्स को. उसने बोला कि कुछ लैंड एनिमल्स हैं, कुछ वाटर एनिमल्स हैं और कुछ एरियल एनिमल्स हैं, मतलब जो एयर में रहते हैं. बट वी कांट क्लासीफाई एनिमल्स इन दिस वे, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट मैमल्स, तो मैमल्स तो आपको हर जगह पे मिलेंगे. मैमल्स तो आपको लैंड पे भी मिलेंगे, वाटर पे भी मिलेंगे, and they will be found in air also. Example is humans, dogs, cats, all are mammals. We are living on land. Then example of aquatic mammal is your whale. Okay, whale is aquatic mammal. Then if we talk about the mammal living in air, that is your bat. Okay, bat flies in air. So इसका मतलब क्या है कि mammals तो आपको हर जगह पे मिल रहे हैं. तो मैमल्स को आप फिर किस ग्रुप में रखोगे? लैंड वाले ग्रुप में रखोगे, वाटर में रखोगे या एयर में? सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ एरिस्टोटल. अनदर ड्रॉबैक ऑफ एरिस्टोटल वॉज what he did, he kept fungus and plants together in the same group, which is entirely wrong. Plants जो हैं they are autotrophic, they can prepare their own food, whereas जो fungus है that is heterotrophic, that feeds on dead and decaying matter. So उसको आप same group में नहीं रख सकते. Another mistake which was done by Aristotle was he placed prokaryotes and eukaryotes in the same group. Prokaryotes are those which are without nucleus, like bacteria, whereas eukaryotes have nucleus. So they can't be placed in the same group. So this was a major drawback of Aristotle. Then another scientist came, name is Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus also gave binomial nomenclature, and he also gave the classification system. Now Linnaeus also gave two kingdom classification like Aristotle. जैसे एरिस्टोटल ने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो दो ग्रुप्स में आएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में, एंड ही फर्दर डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और एनिमल्स को उसने हैबिटेट के बेस पे डिवाइड कर दिया. इन द सेम वे लीनियस ने भी क्या बोला कि टू किंगडम्स हैं, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है. बट अगेन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इससे, क्योंकि इसने भी क्या किया, फंगस को प्लांट्स के साथ प्लेस कर दिया, एंड ही वॉज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. We will discuss in detail about prokaryotes and eukaryotes later on. Then there are some organisms like Euglena. यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्लांट के फीचर्स भी हैं और एनिमल के फीचर्स भी हैं. ओके, एनिमल का फीचर कौन सा है इसके पास? दैट इट कैन शो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और प्लांट्स का फीचर इसके पास क्या है? दैट इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक एज वेल. ये सनलाइट को भी ट्रैप करता है. तो इसके पास प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स हैं. तो इसकी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई कि इसको हम किस ग्रुप में प्लेस करें. दिस प्रॉब्लम was solved by another scientist called as Ernest Haeckel. Okay, this was named as
Ernest Haeckel. Now, what Ernest Haeckel did, he made three kingdoms. एरिस्टोटल और लीनियस ने क्या किया, दो किंगडम्स बनाई, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, प्लांट और एनिमल किंगडम के अलावा ही एडेड थर्ड किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, और इसमें उसने यूग्लिना को प्लेस कर दिया। बट स्टिल इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो फंगस है दैट इज स्टिल प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, फंगस हेट्रोट्रॉफिक है, सो दे कांट बी प्लेस टुगेदर। सेकेंडली, आपके जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैवंट गॉट एनी सेपरेट किंगडम येट। ठीक है, अभी भी उनको हमने प्रोटिस्टा के साथ ही रखा, तो अभी भी उनको कोई सेपरेट जो है वो किंगडम नहीं मिली, जितने भी प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया थे। सो द प्रॉब्लम वॉज स्टिल देयर एंड द अर्नेस्ट हैकल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांट एनिमल के अलावा तीसरी किंगडम इसने ऐड कर दी, प्रोटिस्टा। आफ्टर द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, one more kingdom was added by Herbert F. Copeland. So here is another scientist named Herbert F. Copeland. Now what he did, he added one more kingdom, that is kingdom Monera. पहले तीन किंगडम्स कौन सी थी, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल। अब उसने एक और किंगडम ऐड कर दी, मोनेरा। सो हर्बर्ट एफ कॉपलैंड में टोटल किंगडम्स कितनी हो गई, 4। एरिस्टोटल, लीनियस gave two kingdom classification system. Ernest Haeckel gave three kingdom classification system including Protista, Plantae, Animalia. Herbert F. Copeland gave four kingdom classification system which include kingdom Monera, kingdom Protista, then kingdom Plantae and kingdom Animalia. अब वो जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई इससे। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट्स का ग्रुप है बेसिकली, उसने उसी में बैक्टीरिया को भी रख दिया, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, दे कांट बी प्लेस्ड विद यूकैरियोट्स। तो ये प्रॉब्लम हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने सॉल्व कर दी। व्हाट ही डिड, ही प्लेस्ड द प्रोकैरियोट्स इन मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे ऑल विल बी प्रोकैरियोटिक, दे ऑल विल बी बैक्टीरिया। तो मोनेरा को हम बैक्टीरियल किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्लांटे, एनिमिलिया, तो ये 4 किंगडम्स हो गई। आफ्टर हर्बर्ट एफ कॉपलैंड another scientist came named R.H. Whittaker, and R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification system. R.H. Whittaker, अब इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों दिया, क्योंकि जो हर्बर्ट एफ कॉपलैंड का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें 4 किंगडम्स थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया। स्टिल देयर वाज नॉट सेपरेट किंगडम फॉर द फंजाई। उसने अभी भी फंगस को प्लांट्स के साथ ही रखा, बट दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने एक और किंगडम ऐड कर दी, दैट इज़ किंगडम फंजाई। तो हमारे पास टोटल हो गई 5 किंगडम। सो R.H. विटेकर इज़ नोन फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड दोज किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, okay, then we have kingdom fungi. So he was the one to add kingdom fungi in the classification system, and after that we have kingdom plantae and then kingdom animalia. Now one more scientist came. Name of the scientist is Carl Woese.
कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या बोला, उसने बोला कि 6 किंगडम्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर 5 किंगडम्स हैं, राइट। बट कार्ल वूज के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास 6 किंगडम्स हैं। अब ये 6 किंगडम्स कैसे बना दी इसने? यू नीड टू गो बैक टू दी R.H. विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। R.H. विटेकर ने क्या बोला कि हमारे पास मोनेरा है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आएंगे। हमारे पास प्रोटिस्टा है जिसमें सारे यूकैरियोट्स आएंगे, यूनिसेलुलर होंगे वो मोस्टली। देन उसके बाद हमारे पास किंगडम फंजाई है, प्लांटेई है और एनिमिलिया है। नाउ R.H. विटेकर ने जो मोनेरा किंगडम दी थी, एक्चुअली मोनेरा ऐड की थी हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने, ओके। R.H. विटेकर ने ऐड किया था फंजाई किंगडम। अब देखो मोनेरा में क्या होता है, सारे बैक्टीरिया होते हैं, and these bacteria are further of 2 types, archaebacteria and the other one is eubacteria. Okay, so these are 2 types of bacteria, archaebacteria and eubacteria. Now the main difference between these two is कि जो archaebacteria हैं they are the primitive ones. primitive का मतलब कि सबसे पुराने। जब एक्चुअली इस अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे, दोज विच इनहेबिटेड द अर्थ, दे वर दी आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद आए मॉडर्न बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन वेरी हार्श कंडीशंस बट नॉट यू बैक्टीरिया। जैसे हमारी हॉट थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं, देन आपके ग्लेशियर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड, राइट। देन वी हैव वेरी हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन इन सम वाटर बॉडीज़ लाइक सॉल्टी वाटर लेक्स और ओशियंस, ठीक है। सो दीज आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव दोज कंडीशंस, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं, जब लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट हुई थी तभी आए थे। देन उसके बाद मॉडर्न बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ये मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया ये 2 तरह के होते हैं। नाउ कार्ल वूज ने क्या किया, कार्ल वूज ने इनको ही अलग अलग किंगडम में रख दिया। उसने आर्के बैक्टीरिया को अलग किंगडम में रख दिया और यू बैक्टीरिया को अलग किंगडम में रख दिया। तो 2 किंगडम्स तो यही बन गई। और बाकी की 4 किंगडम्स कौन सी हैं? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमिलिया। तो टोटल हो गई 6 किंगडम्स। तो कार्ल वूस ने किया कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने वही R.H. विटेकर वाला यूज़ किया, ठीक है, जिसमें आपके पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमिलिया था। बट कार्ल वूस ने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। So the name of 6 kingdoms according to Carl Woese is Kingdom Archaebacteria, Kingdom Eubacteria, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Apart from the name kingdom, he used another word called as domain. Domain. डोमेन जो है एक्चुअली दैट इज़ मोर ब्रॉडर पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले सबसे बड़ा होता है डोमेन, डोमेन के नीचे आते हैं किंगडम्स, ठीक है। नाउ कार्ल वूस गेव 3 डोमेन्स एंड दोज 3 डोमेन्स आर बैक्टीरिया, सेकेंड डोमेन इज आर्किया and third domain is eukarya. Okay, so these are the 3 domains according to Carl Woese. The first domain bacteria includes eubacteria. eubacteria हम किसको बोलते हैं? मॉडर्न बैक्टीरिया को।
आई टोल्ड यू वी हैव आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो कार्ल वूस ने 3 डोमेन्स दिए, बैक्टीरिया, आर्के, यूकैरिया। बैक्टीरिया में उसने प्लेस कर दिया यू बैक्टीरिया को, मॉडर्न बैक्टीरिया को, दैट इज़ दी किंगडम, ओके, यू बैक्टीरिया किंगडम। आर्किया डोमेन में उसने क्या किया, किंगडम आर्के बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया, दैट इज़ ओल्ड प्रिमिटिव बैक्टीरियाज। और यूकैरिया में उसने किसको प्लेस किया, यूकैरिया में उसने रखा किंगडम प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटे और एनिमिलिया को। Okay, so these are the 6 kingdoms and 3 domains according to Carl Woos system. यूकैरिया नाम से क्लियर हो रहा है यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाली किंगडम्स आएंगी। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाली किंगडम्स कौन सी हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है एंड एनिमिलिया है। Now we will discuss 5 kingdom classification system in detail. Okay, so here you can see 5 kingdom classification. You have 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Now you need to remember one thing that is very important. Okay, जो आपका kingdom Monera है, this one, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, दोज विच आर विदाउट न्यूक्लियस एंड विदाउट एनी सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, endoplasmic reticulum, nucleus, all these are organelles. So prokaryotes are the organisms which are without nucleus and any organelle. The only organelle they have is ribosome. ठीक है, इनके पास सिर्फ यही एक ऑर्गेनेली होती है, बिकॉज इनको प्रोटीन्स चाहिए अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो जो राइबोसोम्स हैं दे विल एक्चुअली हेल्प इन द formation of the proteins. They are the protein factories of the cell. Other important thing about the prokaryotes is they have cell wall, and the cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. सो जितने भी मोरेरा किंगडम के मेंबर्स होंगे ये सारे प्रोकैरियोट्स होंगे, सारे के सारे बैक्टीरिया होंगे, उनके पास सेल वॉल होगी मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन and they do not have any cell organelle. The only organelle they have is ribosome for the protein formation. Then coming to kingdom protista. Kingdom protista में सारे यूकैरियोट्स होंगे। अब इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट समझने वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो क्या है कि किंगडम फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटे भी यूकैरियोटिक है, एनिमिलिया भी यूकैरियोटिक है। तो फिर हमने प्रोटिस्टा को इनके साथ प्लेस क्यों नहीं कर दिया। प्रोटिस्टा जो है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच आर मोस्टली यूनिसेलुलर। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, मल्टी सेलुलर भी होते हैं कुछ, बट मोस्टली इसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के दे विल बी यूनिसेलुलर। बट इफ़ यू लुक एट फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इनके ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। They have multiple cells in their body, they have tissues, they have organs, they have organ system, right, like we animals। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, कितने सेल्स हैं, वी आर मल्टी सेलुलर।
बट प्रोटिस्टा को हम इसमें प्लेस नहीं कर सकते, ये रीज़न है। ओके, ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। तो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आ गए। ओके, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। रिमेंबर, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर होंगे, सम कैन बी मल्टीसेलुलर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो इनमें सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। फंगस में यूनिसेलुलर फंगस भी हो सकती है, एंड द ओनली यूनिसेलुलर फंगस इज यीस्ट विच इज़ यूज्ड इन बेकिंग एज वेल। ठीक है, तो सारी की सारी फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर होती है एक्सेप्ट फॉर द यीस्ट, इट इज़ यूनिसेलुलर। Now these are the bases for the five kingdom classification. So what are the bases for the five kingdom classification? सेल टाइप कौन सा है, सेल वॉल है या नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, राइट, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ओके, सो वी हैव दीज basis of classification for classifying the organisms into five kingdoms. Now if you look carefully at the cell type, तो मोनेरा में जितने भी सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी किंगडम्स में सारे यूकैरियोट्स हैं। सेल वॉल मोनेरा किंगडम में आई टोल्ड यू इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में कईयों में सेल वॉल होती है एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स इट इज़ एब्सेंट। इन फंगस cell wall is made up of chitin. In plants it is made up of cellulose, and in animals the cell wall is absent. Then coming to nuclear membrane, I already told you कि जो मोनेरन्स हैं they are prokaryotes, so they don't have any nucleus. तो nucleus नहीं है तो nuclear membrane भी नहीं होगी, और बाकी सारी की सारी जो kingdoms हैं वो eukaryotic हैं, so they will have nucleus as well as nuclear membrane. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर है, ठीक है, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट्स में प्रोटिस्टा में दे आर यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर भी होंगे, और बाकी जितने भी हैं दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा, जिसमें आपके सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। Then coming to protista, they can also be autotrophic or heterotrophic. Then fungi is always heterotrophic, it cannot prepare its food. Plants are always autotrophic, then animals are always heterotrophic. So this is how the five kingdoms are made. Okay, considering these features like cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization, mode of nutrition, we have made five kingdoms. R.H. Whitaker has made five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The features are given in your textbook as well. So you can see the three domains are here. Three domains given by Carl Woese: बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। बैक्टीरिया में यूबैक्टीरिया आ गए, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आ गए, और यूकैरिया में हमारे पास क्या क्या आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, किंगडम फंजाई आ गया, किंगडम प्लांटे आ गया, किंगडम एनिमिलिया आ गया। Today we will discuss this much only. Okay, tomorrow we will discuss these eukarya, bacteria, archaea in more detail.
and then we will be proceeding with dichotomous keys, which are used to identify organisms. Then this chapter will be completed, okay? And then we will move to another part of this unit, that is variations, mutations, and then evidences for the evolution.